Welcome back, dear students. Now we will continue that PowerPoint presentations. PowerPoint chapter ka rest of the portions we will cover in today's video. That means what is animation, what is transition, how can we add a theme, all these things we will learn. So first of all, formatting slide design. How can we add a theme? स्लाइड का डिजाइन को कैसे फॉर्मेट करते हैं? तो स्लाइड के डिजाइन को फॉर्मेट करने के लिए वन मेथड इज बाय एडिंग थीम टू स्लाइड. आपके बुक में पेज नंबर 56 में है और दिस इंस्ट्रक्शंस स्टेप्स डिफरेंट स्टेप्स इट इज गिवन. सो थीम डाल के स्लाइड का डिजाइन को चेंज करते हैं. सो लेट्स सी हाउ कैन वी ऐड थीम टू स्लाइड. सो ये थीम ऑप्शन जो है डिजाइन मेनू में मिलेगा, डिजाइन टैब में मिलेगा. सो सेलेक्ट द डिजाइन. डिजाइन में क्लिक किया. Let me show you practically. When you will click on design, then what will happen? See, different designs it will show automatically. Already ready-made designs है बहुत कुछ. So कौन सा डिजाइन चाहिए? You can select any one design. Suppose ये वाला डिजाइन select किया. Then what will happen? See, that same design it is coming to all the slides. You can see सारे slides में जो है same design, same background, same design जो है सारे slide में same background design आ जाएगा. So this way we can add a theme to our slide. अपना PPT में themes अलग अलग theme, एक में नहीं सब में एक साथ डालना है. सपोज 50 स्लाइड्स है, एक एक करके डालना मुश्किल है ना. सो एक थीम में जाके डिजाइन टैब में जाके एक थीम सेलेक्ट करो. जो थीम सेलेक्ट करेंगे सूटेबल है वो सब में आ जाएगा. आई थिंक इट इज क्लियर. Now next option is changing background. Let me undo this. Changing background. Background means suppose particular एक slide का background अगर change करना है, suppose इसका background change करना है तो slide पहले select किया, then background के लिए see design tab में ही देखो format background option है. Click on the format background option. When you will click on the format background option, you will get this menu. ये पहले से open था, पहले से मैंने click करके रखा था. So you will get this background format background option. यहाँ पे so many options है. background में क्या color change करना है, pattern fill करना है, जो भी fill करना है, you can select. Suppose I am changing the background color blue कर दिया. Now see, here ये background जो blue किया, this blue it is coming to this particular slide only, not to all the slide. theme में क्या होगा? थीम में जब सेलेक्ट करेंगे जो भी थीम सेलेक्ट करेंगे सारे स्लाइड्स को वो अप्लाई अफेक्ट करेंगे. लेकिन सपोज अगर आपको एक पर्टिकुलर स्लाइड को ही खाली चेंज करना है, उसका बैकग्राउंड ही खाली चेंज करना है, तो क्या कर सकते हैं? इस तरह फॉर्मेट ऑप्शन में जाके बैकग्राउंड, अगर उसको अलग अलग बैकग्राउंड ऑप्शन में सो मेनी ऑप्शन आर देयर. पैटर्न फिल करना है कि नहीं, कौन सा पैटर्न फिल करना है, दैट पैटर्न यू कैन सेलेक्ट. इस तरह अलग अलग चीजें कर सकते हैं. आई थिंक इट इज क्लियर. Next is formatting presentation using slide master. How can we format the presentation using slide master? So slide master use करके presentation format करेंगे तो benefit क्या है कि वो slide master में जो भी changes करेंगे पूरे slide को affect करेंगे. So let's see how this is ऐसे fill up करके भी आ सकते हैं. So dash suppose if you want to change the entire, you want to change the format of entire slide, then which option you can use? Format slide master. How can you create uniform appearance by adding background image to all slides? So edit slide master. इस तरह अपन one word में भी आंसर लिख सकते हैं. So let's see how can we format the background, presentation background using slide master यूज करके. ये slide master कहाँ पे मिलेगा? व्यू टैब में. सो क्लिक ऑन द व्यू टैब. व्यू टैब में क्लिक करेंगे तो सी स्लाइड मास्टर को क्लिक करना तो मास्टर स्लाइड आपको मिलेगा. मास्टर स्लाइड से स्लाइड मास्टर यू कैन क्लिक. एंड नाउ व्हाट यू हैव टू डू, लेट मी शो यू. यू हैव टू you can do any changes in this slide. What all changes you are making in this slide ना, automatically it will affect all the slides. बाकी सारे slides में ये affect करेंगे. For example, suppose एक particular slides का हम लोग इसका color, so many colors pattern है, so इसमें एक color change किया, ये वाला color change किया, ठीक है. सी ऑटोमेटिकली सारे स्लाइड में जो स्लाइड मास्टर में जो चेंजेस कर रहे हैं ना वो सारे स्लाइड में वो कलर चेंज हो गया.
सो इस तरीके से एक स्लाइड को चेंज करना, एनिमेशन भी अगर एक में डालेंगे तो ऑटोमेटिकली, अभी मैंने अनडू किया क्योंकि मेरा पीपीटी खराब हो जाएगा ना। सो सेम वे एनिमेशन, ट्रांसिशन इफेक्ट, जो भी इफेक्ट आप देंगे एक जो स्लाइड मास्टर में देंगे, ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट सारे स्लाइड्स में आ जाएंगे. दैट इज द यूज ऑफ slide master. So this way you can format your presentation by using slide master. I think it is clear. What is the benefit of formatting the slide using slide master? If you are formatting by using slide master, the same format it will automatically apply to all the other slides. So सारे formatting option you can try for this. Next है, अभी close करते हैं slide master को. Our next option is create custom animation effect for the object. ऑब्जेक्ट को कस्टम एनिमेशन कैसे डालते हैं? एनिमेशन का मतलब है कि मूविंग इफेक्ट, जो मूविंग इफेक्ट आपके स्लाइड्स को, फॉर एग्जांपल इसका स्लाइड शो मैं आपको दिखाती हूँ. व्यू में जाके स्लाइड शो देखते हैं. सी स्लाइड शो में स्टार्टिंग से आ रहा है ना, स्टार्टिंग से आ रहा है. मैंने स्टार्टिंग में कुछ एनिमेशन इफेक्ट दिया, ये एक पर्टिकुलर स्लाइड का था. सो फर्स्ट टेक्स्ट बॉक्स आया, उसके बाद क्लिक करने पर सेकंड टेक्स्ट बॉक्स आया, देन थर्ड, फोर्थ. इस तरह का जो मूविंग इफेक्ट है उसको बोलते हैं एनिमेशन. अब देखो एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब चेंज किया तो स्लाइड का जो उस समय जो इफेक्ट आ रहा है उसको बोलते हैं ट्रांसिशन. सी इस तरह अगला टेक्स्ट बॉक्स आया. सो एक स्लाइड में एक क्लिक किया तो एक एनिमेशन. सी अगला टेक्स्ट बॉक्स आया, इसको दूसरा इफेक्ट मैंने दे दिया था. तो हर एक स्लाइड में, हर स्लाइड के अंदर अलग अलग जो ऑब्जेक्ट है उसको जो अलग अलग डिफरेंट एनिमेशन इफेक्ट जो देते हैं उसको बोलते हैं कस्टम एनिमेशन बोलते हैं. अब देखो एक स्लाइड खत्म हो गया, अब अगले स्लाइड आने पर जो मूवमेंट है, वरना नॉर्मली ऐसे आएगा, एक मूवमेंट देखो इस तरह का मूवमेंट मैंने दिया, इसको बोलते हैं ट्रांसिशन. अब यहाँ पे इसके अंदर एंटरप्रेन्योरियल स्किल के अंदर यहाँ पे अलग अलग टेक्स्ट बॉक्स है, लेकिन मैंने इस ऑब्जेक्ट में कोई एनिमेशन इफेक्ट नहीं डाला, इसलिए सारे एक साथ आया. अंडरस्टूड? सो सी अगला स्लाइड भी एक साथ आया, सारे टेक्स्ट एक साथ आया, क्योंकि इसमें मैंने कोई एनिमेशन इफेक्ट डाला ही नहीं था. तो एनिमेशन इफेक्ट मतलब क्या है? एक स्लाइड के अंदर का डिफरेंट ऑब्जेक्ट को जो मूवमेंट डालते हैं उसको बोलते हैं एनिमेशन. ट्रांसिशन मतलब एक स्लाइड टू दूसरे स्लाइड में जो चेंज करते हैं तो जो मूविंग इफेक्ट देते हैं उसको बोलते हैं ट्रांसिशन. Let me show you how can you put this animation and transition. Suppose ये वाले स्लाइड में इसके अंदर अलग अलग ऑब्जेक्ट है, 3 ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग एनिमेशन इफेक्ट देते हैं. सो उसके लिए एनिमेशन ऑप्शन है ना, उसमें क्लिक करना. क्लिक ऑन दैट एनिमेशन ऑप्शन. Now let's see what will happen when you will click on this animation option. Then different, पहले ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा. सबसे पहले कौन सी ऑब्जेक्ट आना है? सपोज ये वाला ऑब्जेक्ट पहले आना है, तो उसको क्लिक किया. अब इसका अपीयरेंस कैसे इसको स्क्रीन में लेके आना चाहते हैं? सपोज फ्लाई इन करके मैं लेके आ रहे थे, फ्लाई इन इफेक्ट, उसको सेलेक्ट किया. अब सेकंड कौन सा ऑब्जेक्ट आना है? ये वाला टेक्स्ट बॉक्स आना है, तो उसको सेलेक्ट किया. सेलेक्ट करने के लिए इसका आउटलाइन में क्लिक करना. अब ये सेलेक्ट हो गया. अब इसको कौन सा इफेक्ट देना है? सपोज इसको शेड वाला, ये वाला इफेक्ट देते हैं. इट विल शो यू प्रीव्यू. सो इस तरह का इफेक्ट दे दिया. ये सेकंड टाइम में आएगा, इसलिए देखो ऑटोमेटिकली यहाँ नंबर 2 भी डाल दिया. पहले ये आएगा, फिर ये आएगा. अब तीसरा ये वाला टेक्स्ट बॉक्स आना है. अब इसको भी सिलेक्ट किया, आउटलाइन में जाके क्लिक किया. अब इसको कौन सा इफेक्ट देना है? सो मेनी इफेक्ट्स आर देयर, कोई भी इफेक्ट आप दे सकते हो. ये वाला सूम इफेक्ट दे दिया सपोज मैंने, तो इस तरीके से सूम इफेक्ट करके ये आया है ना. सो दिस वे लेट अस सी हाउ इट विल कम इन पीपीटी पावरपॉइंट शो में कैसे आता है. लेट मी शो यू. लेट अस सी दैट एनिमेशन इफेक्ट जो हम लोगों ने डाला आया कि नहीं. लेट अस सी सबसे पहले वो वाला इमेज आया. अब अगला क्लिक पर सी अगला टेक्स्ट बॉक्स आया. नेक्स्ट क्लिक पर अगला टेक्स्ट बॉक्स आया. सो दिस इज कॉल्ड एनिमेशन. आई थिंक एनिमेशन इज क्लियर. You can try, you can make a slide and you can add a different object to your slide and you can apply different animation effect to your slides. This animation में so many other options are also there. पहले कोई भी एक टेक्स्ट बॉक्स क्लिक करेंगे ना तभी वो एनिमेशन इफेक्ट एक्टिवेट होगा. ओके, एनिमेशन में और भी अलग अलग ऑप्शन है. इफेक्ट में जाके यहाँ बहुत सारे इफेक्ट है, कोई भी इफेक्ट अप्लाई कर सकते हैं. और फिर देखो यहाँ पे स्टार्ट ऑन माउस क्लिक लिखा है. माउस क्लिक करने पर एक एक ऑब्जेक्ट आना, उसको अगर चेंज करना है, ऑटोमेटिकली आना है, तो
ड्यूरेशन टाइम दे सकते हैं, तो ऑटोमेटिकली उस ड्यूरेशन के अंदर जैसे कि 2 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली वो आ जाएंगे। इस तरीके से अभी आप सेट कर सकते हो। यू कैन सी द प्रीव्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से प्रीव्यू भी देख सकते हो। सो आई थिंक दिस एनिमेशन इज क्लियर। सो नेक्स्ट ट्रांसिशन, ऑलरेडी मैंने बता चुके हैं ट्रांसिशन का मतलब क्या है, एक स्लाइड से दूसरे स्लाइड में जब शिफ्ट करेंगे तब जो मूवमेंट है उसको बोलते हैं ट्रांसिशन। सो ऑलरेडी मैंने कुछ ट्रांसिशन दिया है, मैं उसको चेंज करके देखते हैं दूसरा ट्रांसिशन। अभी का ट्रांसिशन क्या है, सी प्रीव्यू में देखते हैं व्हाट इज द ट्रांसिशन, है ना, दिस वन है ना, यही वाला ट्रांसिशन है। अब उसको चेंज करते हैं हम लोग, कौन सा ट्रांसिशन, ये कैसा रहेगा, पुश वाला। लेट्स सी डिफरेंट ट्रांसिशंस आर देयर। पुश कर सकते हैं, सी इस तरीके से होगा पुश, एक के बाद इस तरीके से पुश करके अगला आएगा। या रैंडम बार दे सकते हैं, रैंडम बार कैसे होगा, इस तरीके से रैंडम बार जो ऑलरेडी दिया है। अनकवर दे सकते हैं, इस तरीके से एक कवर करके एक स्लाइड चेंज करके, है ना। सो कोई भी एनिमेशन इफेक्ट, फ्रैक्चर करके एनिमेशन इफेक्ट चाहिए तो लेट्स सी फ्रैक्चर कैसे होगा, इस तरीके से होगा। अगर कट एंड ओपन किया हुआ चाहिए तो सी हाउ दैट एनिमेशन इफेक्ट, एक स्लाइड से दूसरा स्लाइड आएंगे तो इस तरीके से आएगा। सो कोई भी एनिमेशन इफेक्ट यू कैन ऐड टू योर स्लाइड, आपके स्लाइड में कोई भी एनिमेशन इफेक्ट आप डाल सकते हैं। आई थिंक इट इज क्लियर। कौन सा मैं पुराना वाला वापस रखूं, रैंडम बार ही रहने दो। Okay, students. So now next is what is our next topic? Let's see. Our next topic is slideshow option. So slideshow may be alag-alag sarah. So many options are there. Let's see which are the different slideshow option. So uske liye first you have to click on slideshow. Slideshow में click किया. Then you will get a slideshow menu. Slideshow का menu मिलेगा. See slideshow कैसे करना है? From the beginning. If you are clicking on the from the beginning, then what will happen? Just see from the beginning click किया तो beginning से स्लाइड शो दिखाएंगे, जो फर्स्ट स्लाइड था ना वहां से स्लाइड शो डिस्प्ले करेंगे। सपोज फर्स्ट बिगिनिंग से नहीं चाहिए, सपोज अभी आपने रखा है स्लाइड शो, सपोज यू आर डूइंग हियर है, ये वाला 11th वाला स्लाइड्स में है। अब उसमें सपोज यू आर डन सम एनिमेशन, यहाँ पे कुछ एनिमेशन डाल दिया, ठीक है। सपोज we'll put one animation here, और इस टेक्स्ट बॉक्स में भी एक एनिमेशन डाल दिया, उसको भी एनिमेशन दे दिया। एंड यू वांट टू सी फ्रॉम दिस फिफ्थ स्लाइड्स का, फिफ्थ स्लाइड्स ऑनवर्ड्स, फिफ्थ स्लाइड्स, सिर्फ फिफ्थ स्लाइड्स का आउटपुट देखना है तो प्रीव्यू में देख सकते हैं। नहीं, आप चाहते कि फिफ्थ स्लाइड से या 11th स्लाइड से बाकी प्रेजेंटेशन करना, स्टार्टिंग वाला ऑलरेडी वन डे एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्लास में 11th से ही स्लाइड शो करना है तो क्या करना होगा, स्लाइड शो में क्लिक किया, 11th जो स्लाइड से प्रेजेंटेशन करना है उसको सेलेक्ट किया, देन यू कैन क्लिक ऑन द फ्रॉम करंट स्लाइड ऑप्शन, फ्रॉम करंट स्लाइड को क्लिक किया, तब लेट्स सी दैट करंट स्लाइड से आया, स्टार्टिंग से नहीं आया। सो दिस वे वी कैन शो our PPT either from starting the slide, from the first slide or from the current slide. Let's see what is the next topic. Next is setup slideshow. See what is the use of this setup slideshow option. This option is used to set a preference for how the slideshow will be presented. That means whether the slideshow will run automatically or will be presented by the speaker. So setup slideshow किस लिए यूज करते हैं? It is used to set slideshow का presentation का शो कैसे करना है उसको सेट करने के लिए, या ये presented, it should be presented by the speaker. स्पीकर से प्रेजेंट करना है या ऑटोमेटिकली प्रेजेंट करना है, स्पीकर कैसे मैनुअली प्रेजेंट करना है, टाइमिंग यूज करके प्रेजेंट करना है, या सिंपली माउस क्लिक में प्रेजेंट करना, ऑल these options we can set with the help of this setup slideshow option. Then next is so many other features are also here. Narration option is there, rehearse option is there, monitor resolution is there, record narration is there, so many options are there. So this is monitor resolution, from with the help of this we can change the monitor resolution, change कर सकते हैं, narration narrate कर सकते हैं, rehearse timing rehearse कर सकते हैं, record कर सकते हैं, ये सब कब यूज करते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल record slide show option. ये record slide show option क्या, what is the use of this? जैसे कि स्टार्ट रिकॉर्डिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, बिगिनिंग से रिकॉर्डिंग स्टार्ट करो,
तो कभी कभी क्या होता है ना, आपको सपोज ऑनलाइन क्लास चल रहा है तो आपको बोल रहे हैं कि पीपीटी बनाओ, 10 पेज का पीपीटी बनाओ, फिर आप उसका नरेशन भी करके रिकॉर्ड करके फाइल भेजो मेरे को, सो दैट आई विल चेक दिस एज ए प्रैक्टिकल सब्जेक्ट करके, एज ए प्रैक्टिकल, या आपका प्रैक्टिकल रिकॉर्ड है, 10 पीपीटी बनाओ, फिर उसको प्रेजेंटेशन करके दिखाओ और विद उसको पूरा रिकॉर्ड करके मुझे भेजो. सो हाउ यू विल डू, you will first of all you will make that ppt, this way ppt करेंगे, फिर क्या करेंगे, record slideshow option में जाएंगे, then you will click on start recording. then after that start recording क्या होता है कि जैसे start recording में क्लिक करेंगे, स्लाइड शो जो भी आप स्लाइड शो करेंगे ना, यहाँ पे ऑटोमेटिकली एक रिकॉर्ड बटन इज हियर ना, सो ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड करते जा रहे हैं, सी रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो ये सारी चीजें आप पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ पूरा पीपीटी शो दिखा सकते हैं, और उसके बाद जब पूरे पीपीटी का एक्सप्लेनेशन पूरे हो जाएंगे, देन यू कैन क्लोज इट, इसको सेव कर सकते हैं, है ना, इसको क्लोज करके सेव कर सकते हैं, सेव करके मुझे भेज सकते हैं. तो उसका पूरा टूल बार देखना है तो टूल बार इस तरीके से देखिए, उसको सेव करके सेंड कर सकते हैं. सो दैट इज द यूज ऑफ रिकॉर्ड स्लाइड शो ऑप्शन. नेक्स्ट इज रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन. व्हाट इज द यूज ऑफ रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन? रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन इज यूज्ड, सपोज आपसे पूछ रहे पीपीटी बनाए, 5 मिनट का पीपीटी बनाना है, तो आप पहले एक बार उसको एक्सप्लेनेशन करके रिहर्स करके देखेंगे 5 मिनट का आ रहा है कि नहीं या कुछ ज्यादा आ रहा है तो रिहर्स करके आप मैडम को बताएंगे हाँ ये जो 10 मिनट का है. सो लाइक दिस वे यू सपोज बिफोर डूइंग द प्रेजेंटेशन यू वांट टू रिहर्स योर पीपीटी, आपको पीपीटी को रिहर्स करना है, तो फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज रिहर्स टाइमिंग ऑप्शन. लेट्स सी व्हाट इज द यूज ऑफ रिहर्स टाइमिंग. what will happen when we will click, हाँ rehearse timing option में जैसे क्लिक करेंगे same way it will show that PPT, वो recording वाला बटन फिर से आएगा, आप एक एक करके PPT ऐसे रिपोर्ट डिस्प्ले कर सकते हैं, एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, उसका टाइमिंग ऑटोमेटिकली रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है. सपोज उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में गया, यहाँ पे कुछ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, बहुत सारे एक्सप्लेनेशन सपोज दिया, सपोज वो एक्सप्लेनेशन दे दिया, अब अगला नेक्स्ट टॉपिक का इसका एक्सप्लेनेशन आपको याद नहीं है, अब उसको एक बार पढ़ने के बाद फिर उसको एक्सप्लेनेशन देना है, तो क्या कर सकते हैं आप, उसको पॉज कर सकते हैं. तो पॉज करके आप एक बार बुक में देखा क्या प्रॉब्लम है, इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देना है, आफ्टरवर्ड्स यू कैन, हाँ आप देखो टाइमिंग भी सब कुछ पॉज करके रखा है. रिकॉर्ड में भी ये सेम ऑप्शन है, यू कैन डू द सेम थिंग विद द रिकॉर्ड ऑप्शन ऑल्सो. अब क्या करेंगे, रिज्यूम रिकॉर्डिंग में क्लिक किया, अब देखो फिर से रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो जाएंगे. इस तरीके से दैट इज द यूज ऑफ दिस पॉज बटन. पॉज बटन एक बार क्लिक करेंगे तो पॉज हो जाएगा, फिर से क्लिक करेंगे तो फिर से रिज्यूम होगा. अब यहाँ पे एक और बटन है रिपीट बटन. व्हाट इज द यूज ऑफ दिस रिपीट बटन? सपोज ये स्लाइड में कुछ इंफॉर्मेशन आपने एक्सप्लेन कर दिया, तो देखा ये एक्सप्लेनेशन रॉन्ग गया, लेकिन पुराने स्लाइड का सही था, ये वाला स्लाइड का एक्सप्लेनेशन रॉन्ग गया. इस स्लाइड में एक्सप्लेनेशन के लिए आपने कितना मिनट ले लिया, 39 मिनट ले लिया, 40 सेकंड ले लिया, लेकिन एक्सप्लेनेशन रॉन्ग है. तो क्या करेंगे, रिपीट ऑप्शन, ये सेम स्लाइड का स्टार्टिंग से रिपीट नहीं करेंगे, सेम स्लाइड का स्टार्टिंग से फिर से रिकॉर्ड करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, रिपीट ऑप्शन में क्लिक किया, तो वो क्या करेंगे, फिर से यहाँ 0 आ गया, इसके पहले वाला स्लाइड तक का 16 सेकेंड, वो 16 सेकंड तक का रिकॉर्डिंग ऑलरेडी इट इज सेव्ड, लेकिन इस स्लाइड का स्टार्टिंग से फिर से आ गया, फिर से रिज्यूम रिकॉर्डिंग करेंगे तो वो रिकॉर्डिंग रिज्यूम हो जाएंगे. फिर से देखो अभी भी कुछ मिस्टेक कर दिया, फिर से क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फिर से रिपीट कर दिया, देखो फिर 16 तक ही आया है ना, इसके पहले का स्लाइड का एंडिंग टाइम 16 आ गया, फिर से आप इसको दोबारा फिर से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं. लाइक दिस वे यू कैन रिहर्स योर रिकॉर्डिंग को रिहर्स कर सकते हैं. खत्म हो गया तो क्लोज कर सकते हैं. जैसे क्लोज करेंगे वो पूछेंगे यू वांट टू सेव इट, सेव करना है तो यस कर सकते हैं, नहीं करना है तो नो कर सकते हैं. So this way we can rehearse the timing, as I think it is clear, rehearse timing, record slideshow, these options it is clear. Then next is save presentation. How can we save the presentation? Presentation save कैसे करते हैं, उसके लिए फाइल ऑप्शन में क्लिक करो, फाइल ऑप्शन में क्लिक करने पर there will be save as ऑप्शन होगा या सेव ऑप्शन होगा. सो सेव ऑप्शन में सेम फाइल नेम पूछेंगे, ऑलरेडी मेरा सेव्ड था इस फाइल नेम से, तो इसलिए उसी में ऑटोमेटिकली सेव किया. अगर आपका सेव नहीं है, फर्स्ट टाइम आप ओपन करके बनाया, तो वो क्या पूछेंगे, फाइल नेम पूछेंगे, फिर नेम लोकेशन सब डाल देना, फिर वो सेव ऑप्शन में क्लिक करना, तब वो सेव हो जाएंगे. देन नेक्स्ट इज प्रिंट प्रेजेंटेशन. प्रेजेंटेशन कैसे प्रिंट कर सकते हैं? सो फॉर प्रिंटिंग फाइल में क्लिक करो, फाइल ऑप्शन में क्लिक करो, देन प्रिंट ऑप्शन में क्लिक करो. सो प्रिंटिंग में भी कुछ ऑप्शंस है. प्रिंट में सी कैसे प्रिंट करना है, प्रिंटिंग का लुक ऑल्सो यू कैन चेंज. सी हियर
ये स्लाइड्स वाले ऑप्शन में क्लिक करना, फुल पेज, दैट मीन्स फुल पेज ऑप्शन में क्लिक करेंगे तो एक स्लाइड आज से फुल पेज करके प्रिंट करेंगे, नहीं तो फिर क्या करेंगे, प्रिंट ऑन साइड में जाके फिर स्लाइड्स में जाके सी ये डाउन एरो में नोट पेज, दैट मीन्स अगर स्लाइड में कुछ नोट्स भी डाला है तो नोट्स नीचे करके स्लाइड्स ऊपर करके इस तरीके से प्रिंट होगा, या कोई और तरीके से भी प्रिंट कर सकते हैं। सिर्फ आउटलाइन प्रिंट करना तो आउटलाइन ऑप्शन क्लिक करना तो ओनली आउटलाइन प्रिंट होगा, या फिर क्या कर सकते हैं 2 स्लाइड्स, एक पेज में 2 स्लाइड करके प्रिंट करना है तो दैट ऑप्शन ऑल्सो यू कैन क्लिक, या फिर 4 स्लाइड्स हॉरिजॉन्टल में प्रिंट करना है तो 4 स्लाइड ऑप्शन हॉरिजॉन्टल में 4 स्लाइड्स भी प्रिंट करेंगे। So these are the different options. कोई भी options जो according to your requirement you can select the different option and you can print. Click on the print. So by this our PowerPoint chapter finished. So I think it is clear. If any doubt you can ask students. You just practice it. With the practice only you will be able to do it very clearly. है ना, जितना practice करेंगे उतना अच्छे से कर पाएंगे। और इसके exercise questions I will discuss in the next video. Thank you.